بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج آپ لوگوں کا ٹیسٹ چیک کر دوں گی پھر بھیج دوں گی. تھوڑی مصروفیت تھی تو اسی وجہ سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال ونعوذ باللہ من حال اہل النار. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اب اگر کوئی جو ہے وہ آواز کی پرابلم ہو تو پھر جو ہے میسج کر لیا کرے. صحیح ہے. تو ہم پڑھ رہے تھے باب الصرف. سمجھ آیا؟ صرف کی طرف ہم نے شروع یہ پڑھی تھی اور یہاں پر بھی پڑھی تھی کہ صرف وہ بیع کہلاتے ہیں جس میں دونوں طرح جو اسمان ہو. سمجھ آئی؟ یعنی کہ کیش کو کیش کے بدلے میں بیچنا اور اس طرح درہم کو درہم کے بدلے میں بیچنا، دینار کو دینار کے بدلے میں بیچنے میں صرف کہتا ہے. سمجھ آئے؟ تو اس کے بارے میں ہم نے دو شرائط پڑھے تھے. پہلا شرط ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اس میں کیا ہوگا اگر جنس بھی ایک ہو، کیونکہ دراہم، یہ دنانیر، یہ سارے جو ہے یہ وزن کر کے بیچے جاتے ہیں نا. تو بس اگر جنس ایک ہو، کیا ہو؟ جنس ایک ہو تو پھر جو ہے اس میں کمی بیشی بالکل حرام ہے. تفاضل بھی حرام ہے اور اس کو ادار بیچنا بھی حرام ہے، الا یہ کہ کمی بیش، الا یہ کہ برابر سرابر ہو یا دن بھی ادن ہو. سمجھ آئے؟ دوسری شرط ہمیں یہ پڑی تھی کہ اگر جنس ایک نہ ہو، یعنی سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچ رہا ہے تو پھر اس میں یدن بھی یدن کمی بیشی تو جائز ہے، لیکن کیا ہوگا؟ لیکن ادار کرنا جو ہے وہ حرام ہوگا. جیسے کہ حدیث جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں پر فوزیہ ہے، وہ صدف کو کیا کر دے؟ بیچ دے. سمجھ فوزیہ صدف کو جو ہے وہ بیچ دے، کہہ دے کہ فوزیہ اس طرح آپ کر لو. فوزیہ کہے صدف کو کہ آپ مجھے 2 دراہم دے، میں آپ کو 1 دینار دیتی ہوں، لیکن ابھی اسی وقت اسی قدوری کی کیا کروں گی؟ اسی قدوری کی کلاس میں دوں گی تو پھر جو ہے یہ جائز ہے. لیکن کہے کہ نہیں کل دے دوں گی تو پھر یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ تو پھر ادار ہو جائے گا. ادار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جائز نہیں ہوتا ہے بائی صرف میں مطلقاً. سمجھ آ گیا؟ اب ہم نے کہا تھا کہ یعنی اگر ایک چیز کو دوسری چیز کے بعد ایک کو ہم جنس بیچا جائے، سونے کو سونے کے بدلے میں بیچا جائے یا دراہم کو دراہم کے بدلے میں بیچا جائے تو پھر مطلقاً جو ہے وہ کیا ہوگا؟ یہ حرام. سمجھے؟ کمی بیشی بالکل جائز ہی نہیں ہے. سمجھا کہ چاہے یا دن بھی ادن اسی وقت جو ہے وہ پیسے دے دیا جائے. سمجھ آئے؟ اسی پر جو ہے بہت سارے متفرق یعنی مسائل متفرع ہے. اس میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک مثال آپ دونوں کو دیتی ہوں کہ فوزیہ نے صدف کو 100 دراہم دیے. کتنے دراہم دے دیے؟ 100 دراہم دے دیا. اور اس کے پاس صدف کے پاس ایک ایسا کیا تھا؟ ایک ایسا کیا تھا؟ یعنی زیور تھا. ایک ایسا زیور تھا جس میں 50 کیا تھی؟ 50 یعنی 50 کیا تھی؟ 50 دراہم کا کیا تھا؟ سونا چاندی شامل تھا. سمجھے؟ دیکھو کتنے دیے تھے؟ فوزیہ نے 100 دراہم دیے تھے. دراہم بھی تو چاندی کے ہوتے ہیں نا، تو اسی وجہ سے فوزیہ نے صدف کو 100 دراہم دے دیا. اور فوزیہ کے پاس ایک ایسا زیور تھا جو کہ اس میں تو ادھر ادھر کی یہ سونے چاندی میں تھوڑی بہت ملاوٹ ہوتی ہے نا، لیکن یہ صدف کے پاس جو زیور ہے، سمجھے، جو جویلری ہے اس میں کتنے دراہم ہے؟ 50 دراہم ہے. اب کیا کرے گا؟ اب کیا کیا؟ صدف نے جو ہے فوزیہ سے 50 دراہموں پر تو قبضہ کر لیا ایک مجلس میں، اور کہا فوزیہ کو کہ 50 دراہم بعد میں دے دے. کیا کر دے؟ بعد میں دے دے. تو یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو دیکھو میں نے بتا دیا کہ جب سونے چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچا جائے تو ادار مطلقاً جائز نہیں ہے. تو اب آیا اس مسئلے میں بھی جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ تو امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. کیوں کہ یہ صدف کے پاس جو زیور ہے وہ اس کے اندر کتنے دراہم ہے؟ 50 دراہم ہے. سمجھے؟ اور باقی چیزیں جو ہے اس میں تھوڑا سا پیتل ہے، لوہا ہے، ملاوٹ وغیرہ ہے. سمجھے کہ اور قبضہ بھی کتنے دراہموں پر ہوا ہے مجلس میں؟ 50 دراہموں پر. تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اس صدف کے پاس جو زیور ہے اس کے بدلے میں جو فوزیہ نے کیا کر دیا؟ 50 درہم دی دیے. سمجھا گیا؟ یدن بھی یدن دی دیے تو یہ اس کے بدلے میں ہو جائے گا. ہاں البتہ جو 100
दिरहम थे ना फौजिया पर तो कीमत हो, तो जो 50 दिरहम जो कर्ज करा दिया, हम उसको जो मिलावट हो, समझ, जो चांदी में मिलावट होता है या उसका ये जो क्या होता है कि क्या चेन जो होता है ना, या ब्रेसलेट का चेन हुआ, वो क्या था, किसी और चीज का था, लोहे का था, ये पीतल का, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये पीतल का पैसे अदा नहीं हुई है, और ये चांदी के अंदर जो है, यानी जेवर के अंदर जो 50 दिरहम है उसकी कीमत अदा हो चुकी है, वो क्या 50 दिरहम। हाँ, अलबत्ता जो 50 दिरहम उधार है, क्योंकि तो फौजे पर तो 100 दिरहम वाजिब थे, उन्होंने 50 दे दिया अभी और 50 कह दिया कि कल दे दूंगे, समझ आ गए हो। अब तो देखो यहाँ पर दिरहम का बदला चांदी से हुआ, तो हम ये समझे जाएंगे कि इस जेवर के अंदर जो 50 दिरहम है वो फौजे ने जो अभी दे दिया वो 50 दिरहमों के बदले में बस बराबर सराबर हो गया कि नहीं होगा, और यदन भी हो गया। अलबत्ता जो फौजिया 50 दिरहम बाद में देगा, वो हम ये समझ जाएंगे कि इस जेवर के अंदर जो पीतल लगा हुआ है वो उसके बदले में उधार होगा, और पीतल के बदले में उधार लेना जायज होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई हुई होगी, आप लोगों को समझ आ गई इस मसले की। जी कह दे, यस नो लिख कर भेज दे, जो भी करना है लिख के मुझे इन्फॉर्म कर दे, समझ आ गई, ताकि आगे चल सके। जी आ रही है बात। अच्छा चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो वमन बा, वो अब पढ़ते हैं, वमन बा सैफन, जिसने बेची चांदी से, सैफन वमन बा, जिसने बेची तलवार, मुहल्ला, ऐसा तलवार जो चांदी से आरास्ता हो, यानी जो चांदी से मुज़य्यन शुदा हो, कितने दिरहम हो गए, बिमिअती दिरहमिन, 100 दिरहमों के बदले में, वहिलियतु 50 दिरहमन, और इस तलवार के अंदर जो थे वो 50 दिरहम थे, फदाफा मिन समनिही 50 दिरहमन, बस मुश्तरी ने जो है अपनी यानी 100 दिरहम कीमत में से 50 दिरहम तो दे दिया, जाज तो जायज हो जाएगी बया। वक़ाल अल-मक़बूज़ मिन हिस्सतिल फिज़ा, जो कीमत पर जो है वो कब्जा किया है, वो हम ये समझेंगे कि ये क्या है, चांदी के बदले में है। व इल्लम युबय्यिन ज़ालिका, अगरचे जो है फौजिया ने ये बयान नहीं किया है कि मैंने यही 50 जो है वो जो जेवर के अंदर 50 दिरहम लगी हुई उसके बदले में लेकर है दिया है, समझ आए। ये जरूरी नहीं है बयान करना, क्योंकि हीला कभी कभार जो होता है, यो शरीयत जो है हत्तल इम्कान कोशिश करता है कि इंसान का कोई भी चीज जो है वो जाया ना हो जाए, तो इसी वजह से ऐसे हीली करने पड़ते हैं, समझा के, यानी हराम नहीं बिल्कुल, बल्कि जायज इस्तेहसानन जो है वो हीली करने पड़ते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो क्या कर दिया, जायज करार दे दिया। अच्छा, फदफा मिन वकज़ालिक, और इस तरह इन क़ाला खुज़, और अगर क्या कह दिया ये 50 ले लो, मिन समनिहा, इन दोनों के बदले में, यानी जेवर और जो मिलावट है उन दोनों के बदले में ये 50 ले लो, तब भी जो है हम ये समझे जाएंगे कि ये जेवर की में लगी हुई 50 दिरहम के बदले में ये 50 दिरहम है, समझ आए। चाहे वो सराहतन के भी दे कि ये इसके बदले में, तब भी हाँ जो है हम जो है उसकी क्या करने, उसकी बैल को बचाने के लिए जो है हम यही कहेंगे कि उसका जो है यानी ये क्या है, चांदी के बदले में। देखो फ़इल्लम यतक़ाबज़ा, लेकिन फिर दूसरी बात यहाँ पर इमाम खुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये की कि अगर फौजिया ये सदफ ने जो है फौजिया के पास जो 50 दिरहम है उसी पर जो है उसने अभी तक को कब्जा नहीं किया है कि वो दोनों उठ गए, खुदूरी का क्लास खत्म हो गया, तो फिर जो है ये अक़द बातिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो चांदी के बदले में बेचा जा रहा था, अब बगैर जो है अभी तक उस, हालांकि हमने तो कहा था कि यदन भी यदन होनी चाहिए, अब यहाँ पर तो 50 दिरहम दी नहीं गए हैं, इसी वजह से ये अक़द बातिल हो जाएगा। देखो फ़इल्लम यतक़ाबज़ा, बस अगर दोनों ने कब्जा नहीं किया, हत्ता बतल अल-अक़्द फ़िल हिल्यति, यहाँ तक कि जुदा हो गए, समझ आया, यहाँ तक कि हत्ता बतल अल-अक़्द फ़िल हिल्यति, यहाँ तक कि ना, तो बस फिर जो है अक़द जो है वो हिल्ये में क्या हो जाएगा, जेवर में जो है वो बातिल हो जाएंगे। व इन काना, तो बस यानी हमने तो कहा था ना कि 50 दिरहम जो है वो इस चांदी के इस जेवर के अंदर लगी हुई है, तो बस ये जो जितना चांदी इसमें लगी हुई है तो इस चांदी में तो बातिल हो जाएगी अक़द, लेकिन जो इसके आसपास या जैसे कि चेन हो इसका मिलावट का, लोहे का, पीतल का, समझ आ गए, तो फिर जो है इसमें फासिद नहीं होगा, समझ आए, और दांतों में फासिद नहीं होगा। बस अगर ये चांदी जो है उस जेवर से जो है आसानी के साथ जो है बगैर नुकसान के जुदा हो सकता हो, तो फिर जुदा हो करके जो है मुश्तरी को ये दे देंगे, यानी
मिलावट वाला, और चांदी जो है उसमें तो बातिल हो जाएगी। लेकिन अगर वो नुकसान के बगैर जो है वो जुदा नहीं होता तो फिर सब के सब जो है वो क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। देखो इनका यतखल्लस बिगैर ज़रर, बस अगर चांदी जो है वो क्या हो रहा है यानी बगैर ज़रर के बगैर नुकसान के इससे जुदा हो सकते हो, जाज़ल बैउ फी सैफी, तो फिर तलवार में जो है वो जायज़ हो जाएगी, वो बतला फिल हिल्यती, और उसका जेवर में, यानी वो तो आप लोगों ने देखा होगी कि तलवार के ऊपर जो है इस तरह क्या वो यानी नमाइश नक्श हुआ होता है, समझिए, तो उसी को जेवर के साथ ताबीर किया है। समझ आ गया? अच्छा आगे फरमाते हैं आगे ये फरमाते हैं कि एक शख्स ने चांदी का एक बर्तन था, समझ आ गए हो, जो बिल्कुल खालिस चांदी का बर्तन था, समझ, इसमें किसी किस्म के मिलावटो नहीं मौजूद नहीं था, समझ आ गए हो, एक खालिस चांदी का बर्तन था। उसको मिसाल के तौर पर फौजिया के पास जो है वो एक बर्तन था खालिस, समझ आ गई, प्लेट था, जाम था, जो भी था, समझ, खालिस बर्तन था चांदी का। अब सदफ को उसने बेच दिया कितने रुपए पर, 100 दिरहम पर। तो देखो दिरहम भी तो चांदी है और ये बर्तन भी चांदी है, समझ आ गए। तो चांदी के बदले में हमने ये कायदा पढ़ता कि जब चांदी के बदले में बेचा जाए तो इसमें बराबर सराबर भी जरूरी है, और साथ साथ जो है क्या होना जरूरी है, साथ साथ में जो है वो हाथ दर हाथ, समझ आए, कब्जा, एक ही मजलिस में दोनों पर कब्जा करना भी जरूरी है, समझ आ गए हो। बस और इस बर्तन में 100 दराहिम मौजूद थी, समझ, अब यहाँ पर बराबरी सराबी मौजूद है, समझ आ गई हो। अब मुश्तरी ने यानी सदफ ने जो है फौजिया ने सदफ ने जो है फौजिया को क्या कर दिया, उससे 100 दिरहम ले लिए और ये क्या कर दिया, ये उसने बेचने का कहा, समझ अभी तक को। अब सदफ ने अभी तक जो है फौजिया को 100 दराहिम दिए है या नहीं दिए, समझ आ गए हो। अब फौजिया ने जो है उसको 50 दराहिम तो दे दिए, क्या कर दिए, 50 दराहिम तो दे दिए फौजिया को बर्तन के बदले में, लेकिन 50 दराहिम बाकी थे, समझ आ गए, कि वो मजलिस से उठ गए, कुदूरी लिफ्ट हो गई, समझ आ गए, क्या हो गई, लिफ्ट हो गई, कुदूरी का क्लास छोड़ दिया, समझ आ गए। तो ये तो मजलिस जो है वो खत्म हो गया ना, जब मजलिस खत्म हो गया तो बस जो है वो यानी जितना बाकी है जो 50 दिरहम के बदले में है चांदी है, उसमें तो आधे में यानी जितना अदा की है उतने ही हिस्से में जो है वो चांदी में जो है वो बया क्या हो जाएगी, नाफिज हो जाएगी, और जितना बाकी है उसमें बातिल हो जाएगी। और बस जब ये चूंकि ये एक बर्तन है ये जुदा नहीं हो सकता, तो बस हम ये समझ जाएंगे कि ये सदफ और फौजिया के दरमियान मुश्तरक चीज है, आधा वो इस्तेमाल करेगी और आधा ये इस्तेमाल करेगी, समझ आ गए। और अगर बाद में जो है क्या कर दिया, आसिफा ने कह दिया कि सदफ को कि इसमें जो है क्या है, ये फौजी जो है मेरी बहन है, इसमें मेरा भी हक है, जो बर्तन आपको भेजा है इसमें मेरा भी हक है, समझ आ गए। तो बस जो है ये बर्तन फौजी से कन्वर्ट होकर जो है वो आसिफा के पास आ जाएगी, क्या है, किसके पास आ जाएगी, फौजी के पास से लेकर यानी आसिफा, तो बस ये बर्तन जो है वो आसिफा और सदफ के दरमियान पर हो जाएगी, समझ आए। समझ आ गई क्या हो जाएगी, यानी आ जाए, यानी क्योंकि अब ये वो क्या होता है, हाँ अलबत्ता जो है वो क्या है, वो सदफ को ये इख्तियार है, क्या है, सदफ को इख्तियार है, क्योंकि फौजिया ने इसके साथ धोखा किया था कि मैं इसका कोई जो है क्या है, यानी मैं इस बर्तन में कोई शरीक नहीं था, अब तो आसिफ मुश्तरक जो है वो निकल आई है, तो इसी वजह से जो है इसको ये इख्तियार होगा कि आसिफा को अपने साथ शरीक कर ले इसी बर्तन में, क्योंकि ये तो जुदा नहीं हो सकते ना। और क्या होता है, लेकिन यानी टुकड़े टुकड़े जो है ये तो बर्तन नहीं हो सकता, और ये भी इख्तियार होगा कि इस बया को खत्म करे, क्योंकि फौजिया ने जो है सदफ के साथ धोखा किया था, क्या किया था, धोखा किया था, तो इसी वजह से जो है ये भी जायज हो जाएगा। देखो वमन बाइना फिज़्ज़तिन, क्या, फिज़्ज़तिन, और जिसने बेचा चांदी का बर्तन, सुम्मा इफ्तरका, फिर दोनों जुदा हो गए, वक़द क़बज़ बाज़ समनिही, हालांकि कुछ कीमत ले ली है, यानी आधा कीमत पर तो कब्जा हो चुका है, आधे पर नहीं हो चुका है।
تو بطل العقد، تو عقد جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، فیما اس میں لم یقبض جس پر قبضہ نہیں ہو جائے، چونکہ 50 درہم ادا ہو چکی ہے تو اسی وجہ سے 50 والے درہم کے حصے میں تو نافذ ہو جائے گی اور 50 والے میں نہیں ہوگی، پس یہ مشترکہ ہوگا۔ وصح فیما قبضہ، اور صحیح ہو جائے گی بیع اس میں جس میں قبضہ ہو چکے ہے، جس ثمن میں قبضہ ہو چکے ہے۔ وکان الاناء، اور یہ برتن ہوگا مشترکن مشترک بینہما ان دونوں کے درمیان، یعنی بائع اور مشتری کے درمیان، صدف اور فوزے کے درمیان۔ آگے کیا مسئلہ بتاتے ہیں، وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْإِنَاءِ، اور اگر مستحق نکل آیا برتن کی کچھ حصے کا، سمجھا کہ کیا برتن کے کچھ حصے کا، یا کیا کر دیا ہے یعنی فوزے نے تو پورا جو ہے وہ صدف کو ایک برتن بیچ دیا، کیا کر دیا، کیا کر دیا، بیچ دیا، سمجھا گئے ہو۔ اب یعنی قبضہ بھی ہو چکا ہے، اس نے 100 دراہم دے دیا، بعد میں جو ہے آصف نے یہ دعویٰ کر لیا، سمجھا، یہ عدالت میں دعویٰ کر دیا کہ فوزیہ جو ہے یہ میری بہن ہے، اس کے پاس جو چاندی کا برتن تھا وہ اس میں میرا بھی حق تھا، آدم میرا حق تھا نا، تو اسی وجہ سے جو ہے کیا ہوگا، اور اس نے اس بات کو گواہوں کے ذریعے سے، سمجھا کہ ثابت کر دیا، تو پس جو ہے اب یہ برتن جو ہے وہ صدف اور آصفہ کے درمیان ہو جائے گی، اور جو اس نے قیمت ادا کی ہے وہ آدھا لٹایا جائے گا، سمجھا گئی ہو۔ اب لیکن اس کو اختیار ہے، سمجھا، تو چونکہ فوزیہ نے دھوکہ کیا ہے صدف کے ساتھ، تو فوزیہ کو تو یہ اختیار ہے کہ آصفہ کے ساتھ برتن کو تقسیم کر لے، آدھا تقسیم کر لے، تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن وہ یوز کر لے اور دوسرے دن، کیونکہ یہ جدا نہیں ہو سکتا، سمجھا گئے ہو، اگر جدا کریں گے تو پھر نقصان پہنچے گی نا، اسی وجہ سے اب اور صدف کو یہ بھی جو ہے اختیار ہے کہ وہ سر سے جو ہے اس بیع کو ختم کر دے، کیا کر دے، ختم کر دے۔ لیکن اگر ایک ایسا چیز ہو، ایک ایسا مبیع ہو جو کہ ٹکڑے ٹکڑے سے خراب نہیں ہوتا، جیسے ڈلی ہو گیا، ڈلی ٹکڑے ٹکڑے سے خراب نہیں ہوا، اب فوزے نے صدف کو ایک ڈلی بیچی جائے، سمجھا، کیا کر دے، ڈلی بیچی ہے جس میں آصفہ نے دعویٰ کیا گواہوں کے ذریعے سے ثابت کیا کہ اس میں میرا بھی حق ہے، کیا ہے، میرا بھی حق ہے۔ اب صدف کو صرف ایک اختیار ہوگا کہ وہ کیا کر لے، یا تو اپنے ساتھ اس کو مشترک کر لے یا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آصف کو اپنا حصہ دے، لیکن صدف کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اس بیع کو رد کر دے، کیا کر دے، رد کر دے، ختم کر دے۔ کیونکہ یہ ڈلی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے سے خراب نہیں ہوتا، جبکہ برتن جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو کہ ٹکڑے ٹکڑے سے خراب ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے برتن والے میں جو ہے اس کو دو اختیار ہے، یا تو مشترک کر لے اور یا ساتھ میں جو ہے وہ ختم کر لے بیع۔ جبکہ ڈلی والی مسئلے میں، ڈلی آگے مسئلہ آتا ہے، ڈلی والے میں سونے کا ڈلی آپ لوگ جانتے ہو نا، تو کیا ہوتا ہے اس میں اختیار نہیں، کیونکہ وہ ٹکڑے ٹکڑے سے ختم نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا، دیکھا۔ وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْإِنَاءِ، اور اگر مستحق نکل آیا برتن کے کچھ حصے کا، كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ، تو مشتری کو خیار ہوگا، إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، ہاں تو اس کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ آصفہ کو جو ہے وہ کیا کر لے، یعنی فوزیہ سے 100 روپے لے، 50 درہم لے لے اور آصفہ کو وہ درہم دے دے، سمجھا گئے، اور یہ بھی اختیار ہوگا کہ مشترک کر رہے، اور یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ رد کر لے، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ، ہوگا چاہے تو اس بیع کو سرے سے فسخ کر دے۔ وہی وَمَنْ بَاعَ قِطْعَةً نُقْرَةٍ، وہی والی ڈلی والی میں نے بات کی، نقرہ کہتے ہیں پگھلا ہوا چاندی، پگھلا ہوا چاندی یا سونا۔ وَمَنْ بَاعَ قِطْعَةً نُقْرَةٍ، کسی نے بیچی چاندی کی ڈلی، فَاسْتُحِقَّ بَعْضُهَا، پس اس کے بعد سے کا کوئی مستحق نکلا، اخذ ما بقی بحصته، تو پس اس کو صرف ایک اختیار ہوگا کہ اس کو پیسے دے دے اور اپنا کیا لے لے، اپنا چیز لے لے، سمجھ، ولا خیار له، اور اس کو اختیار نہیں ہوگا، سمجھا کہ یہ تب ہوتا ہے نا جب کہ کیا ہوتا ہے، فوزیہ کے پاس جو ہے، فوزیہ کے پاس صدف کے 50 درہم جو ہے، یعنی آدھا قیمت فوزیہ کو ادا کر چکی تھی اور آدھا ادا نہیں کر چکی تھی، سمجھا گیا، یعنی جو کہ پہلے والی میں نے بتا دیا کہ 50 درہم ادا کی تھی کہ وہ صدف جو ہے وہ لیفٹ ہو گئی، سر مختصر القدوری کا مجلس چھوڑ دیا، تو اس میں تو آدھے میں جو ہے وہ فوزیہ اور صدف کے درمیان جو ہے وہ مشترک ہو گیا نا، تو پس اگر پھر اسی مشترک میں جو ہے آصفہ کا حق نکل آیا، تو پس جو ہے صدف یا تو کیا کرے گا، آصفہ کو کیا کرے گا، پیسے دے گا اور
इस चीज को पूरा लेगा, क्योंकि 50 दिरहम तो फौजी को अदा कर चुके हैं और 50 दिरहम इसको दे दे और ले ले, और इसको यही भी इख्तियार हासिल है कि वो खत्म कर दे, क्योंकि बर्तन जो है वो आपस में जुदा नहीं हो। लेकिन अगर डली हो या डली में जो है किसी का यानी आधा कीमत अदा कर चुके हो कि क्या कर दिया, कब्ज से पहले जो है वो क्या मजलिस खत्म कर दी, समझ आ गए हो? तो बस जब इसी तरह होता है तो फिर इसमें जो है वो क्या होगा, और फिर इसी मुश्तरक तो चूंकि वो डली जो है वो क्या होगा, भाई और मुश्तरी के दरमियान जो है वो क्या होगा, ये क्या मुश्तरक होगा ना, तो बस इसी मुश्तरक के फिर दोबारा आसिफा का हक निकल आया, तो फिर जो है वो सदफ जो है या तो इसको एक इख्तियार हाजिर होगा कि सदफ को कीमत दे दे। क्यों? क्योंकि डली जो है वो क्या होता है वो वला इख्तियार लहू, लेकिन उसको इख्तियार जो है वो क्या क्या होगा, हासिल नहीं होगा किस चीज का, बै फसख करने का, क्योंकि ये डली जो है वो क्या होता है ये टुकड़े टुकड़े हो सकती है अच्छा, आगे आगे एक और मसला है, थोड़े से पेचीदा मसला है, आप लोग गौर कर ले, समझ आ गई हो? एक और मसला है, वही वाली मिसाल देती हूँ कि फौजिया ने सदफ को कहा, क्या कहा? फौजिया ने सदफ को कहा कि मैंने आपको बेच दी, क्या? मैंने आपको बेच दी 2 दिरहम और 1 दिनार। कितने? यानी मैं आपको 2 दिरहम और 1 दिनार देती हूँ, आप इसी तरह करें कि आप मुझे 2 दिनार और 1 दिरहम दे दो। कितने दिनार? 2 दिनार और 1 दिरहम दे दो। देखो, फौजिया ने सदफ को कहा कि मैं आपको 2 दिरहम देती हूँ और साथ में 1 दिनार देती हूँ, और आप मुझे इसी तरह करो कि आप मुझे 2 दिनार दो और 1 दिरहम दो। समझ आ गए? अगर हम उसको एक थोड़ा सा इसका स्टाइल बदल ले, हम ये कह ले कि हाँ, फौजिया जो है वो सदफ को कहती है कि आप मुझे 2 दिरहम दे, मैं आपको 1 दिरहम देती हूँ, आप मुझे 2 दराहम दे, मैं आपको 2 दराहम देती हूँ, आप मुझे 1 दिरहम दे। तो देखो, 2 दिरहम का 1 दिरहम के बदले में बेचना, इस तरह 2 दिनार को 1 दिनार के बदले में लेना, ये तो सरासर सूद है कि नहीं है? सूद सूद है ना, क्योंकि दोनों जिन्स एक तरफ है, क्या है, दोनों दोनों तरफ जिन्स एक है, और जिन्स को कमी बेशी के साथ ये सूद कहलाता है। हालांकि इमाम खुदूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बया जायज है, वो किसी तरह, क्योंकि इसने ये जिक्र नहीं किया है कि 2 दिरहम को 1 दिरहम के बदले में मैं बेच रही हूँ, या 1 दिनार को 2 दिनारों के बदले में मैं ले रही हूँ, बल्कि वो कह रही है कि 2 दिरहम और 1 दिनार को मैं आपको बेच रही हूँ। कितने? 2 दिरहम और 1 दिन कितने? 2 दिनार को, यानी यहाँ पर फौजिया सदफ को कह रही है कि मैं आपको 2 दिरहम 1 दिनार बेच रही हूँ और आप मुझे 2 दिनार 1 दिरहम दे दो। तो हम ये समझ जाएंगे कि इसके यानी इसको मुख्तलिफ जिन्स के अक्स कर रहे, यानी फौजिया गोया ये कह रही है कि आप मुझे 1 दिरहम क्या कहते, आप मुझे 2 दिरहम दे, मैं आपको 1 दिनार देती हूँ। तो चूंकि दिरहम दिनार का जिन्स मुख्तलिफ है ना, तो इसी वजह से कमी बेशी जायज है। इस तरह वो कहती है कि मैं आपको 1 दिनार देती हूँ, आप मुझे 2 दिरहम दे, तो ये जायज हो जाएगा। समझ आएंगे? क्योंकि इसने वाव को जमा किया, यानी 2 दिरहम 1 दिनार को मैं बेच रही हूँ आपको कितने के बदले में? 2 दिनार 1 दिरहम के बदले में। बस हम गोया ये समझ जाए, ये भी एक किस्म का हीला है, हम ये समझ जाएंगे कि फौजिया ने सदफ को कहा कि आप मुझे 2 दिरहम दे, मैं आपको 1 दिनार देती हूँ, इस तरह आप मुझे क्या, मैं आपको 1 दिनार, इस तरह आप मुझे क्या कर दे, 1 दिनार दे, मैं आपको क्या करती हूँ, 2 दिरहम देती हूँ। यानी जब जिन्स का आपस में मुतबादिल हो तो फिर इसमें कोई कबाहत नहीं है। समझ आ? क्या है? कोई कबाहत नहीं है। समझ आ गई हो? तो देखो, यानी ये भी कह सकते हो कि 2 दिरहम को 1 दिनारों के बदले में बेचा, 1 दिरहम को 1 दिनार के बदले में बेचा सर। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर 2 दिनार को 1 दिनार में बेचा और इस तरह 2 दिरहम को 1 दिनार, क्योंकि ये हीला है। समझा? ये जब एक जायज हीला बन सकती हो तो फिर जो है खामखा बया फसख करने की क्या जरूरत है? इसकी समझ आ गई या दोबारा रिपीट कर लूं? जी कह दे या लिख कर भेज दे।
समझ आ गई आप लोगों को? जी जी आ रही है। अच्छा जी चलो आ रही ठीक है। है। अच्छा, वमन बाआ दिरहमैन व दिनारन बिदिनारैन व दिरहमिन, जिसने बेचा, देखो वमन बाआ जिसने बेचा, दिरहमैन व दिनारन 2 दिरहम और 1 दिनार को, कितने के बदले में? बिदिनारैन व दिरहमन 2 दिनार और 1 दिरहम के बदले में। जाजल बयो, तो ये जायज हो जाएगा बया। वजुइला, और हम वजुइला कुल्लु वाहिदिन, और करार दिया जाएगा, वजुइला रख दिया जाएगा हर एक को, मिनल जिनसैन बदलम मिनल आखर, यानी इनमें से हर जिन्स, यानी जिनसैन में से हर एक को दूसरे जिन्स के बदले में रखा जाएगा, यानी दिरहम को दिनार के बदले में और दिनार को दिरहम के बदले में रखा जाएगा। हम ये समझे जाएंगे कि 2 दिरहम को 2 दिनार के बदले में बेचा और 1 दिनार को 1 दिरहम के बदले में बेचा। ये अगरचे इसमें कमी बेशी है, लेकिन चूंकि ये जिन्स जो है वो मुख्तलिफ है, तो यदन भी यदन जो है उसकी कमी बेशी जायज हो सकती है, लेकिन उधार जायज नहीं हो सकती। वही वाला आगे मसला बयान फरमाते हैं कि किसी ने कहा, क्या कर दिया कि किसी ने जो है वो अच्छा, इमाम जुफर और इसमें अहनाफ के नज़दीक ये बया जायज है, जबकि इमाम जुफर इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जायज नहीं है, क्योंकि मजमुए का बदला मजमुए के साथ हो रहा है। समझ आए कि क्या है वो? मजमुए का बदला मजमुए के साथ हो रहा है, तो इसी वजह से 2 दिरहम को 1 दिरहम के मुकाबले, 1 दिनार को 2 दिनारों के मुकाबले में करार दिया जाएगा, और एक ही जिन्स में कमी बेशी जायज नहीं है, तो इसी वजह से जो है ये जायज नहीं होगा। लेकिन बहरहाल हम अहनाफ जैसे अहनाफ के कौल ही पर अमल करेंगे। आगे क्या फरमाते हैं कि किसी ने जो है वो क्या कर दिया, सदफ ने आसिफा को क्या कहा, सदफ ने आसिफा को कहा कि आप मुझे क्या कर दे, मैंने आपको 10 दिरहम दे दी, मैं आपको 10 दिरहम देती हूँ, आप मुझे 10 दिरहम और 1 दिनार दे, 10 दिरहम और 1 दिनार दे, तो ये भी जायज हो जाएगा। यानी हम 10 दिरहम क्या 11 दिरहम नहीं, सदफ ने क्या कर दिया, आसिफ को कह दे कि मैं आपको 11 दिरहम देती हूँ, आप मुझे 10 दिरहम और साथ में 1 दिनार दे दे। समझ, यहाँ पर भी 11 है, लेकिन ये 11 जो है वो दिनार है, वहां पर जो है वो क्या है, दिरहम है, तो बस ये बया भी जायज है। हम ये समझ जाएंगे कि ये 11 दिरहम में 10 दिरहम जो है वो 10 दिरहमों के बदले में हो जाएगा, और 1 दिरहम जो बाकी होते हैं वो दिनार के बदले में हो जाएगा, तो ये बया जायज है, क्योंकि क्या है 10 दिरहम के बदले में बेचा, तो ये तो बराबर सराबर है, तो इसी वजह से ये जायज हो जाएगा। अलबत्ता वो जो 1 दिरहम 1 दिनार के बदले में बेचा, अगर ये दिनार ज्यादा है लेकिन फिर भी जायज है, क्योंकि मुख्तलिफतुल जिन्स है, तो इसी वजह से इसमें कमी बेशी जायज है, मगर यदन बियदिन उधार जायज नहीं है। वमन बा, और जिस शख्स ने बेचा 11 दिरहमन 11 दिरहमों को बिअशरति दराहिमा 10 दिरहम व दिनारिन और एक दिरहम के बदले में। समझ आ गए? जाज़ल बयो, तो ये बया जायज हो जाएगा। वकानतिल अशरतु बिमिस्लिहा, तो ये 10 दिरहम जो है वो 10 दिरहमों के बदले में हो जाएगा। वह दिनार भी दिरहमें, और 1 दिनार जो है वो 1 दिनार के बदले 1 दिरहम के बदले में बेचा जाएगा। आगे क्या फरमाते हैं यो, वयजूजु बैउ, अच्छा एक होता है, आप लोग ये समझ ले, एक दिरहम सही होता है, क्या होता है, एक दिरहम सही होता है, एक दिरहम गल्ला होता है। दिरहम गल्ला, दिरहम सही वो होता है, वो दिरहम होता है जैसे हमारे जमाने में जो है वो क्या होता है, एक नोट होता है, 1 रुपए पैसा होता है। समझ आ गए आप? ये पहले जमाने में जो होते हैं वो यानी जिस तरह जो है, मैं बताती हूँ आप लोगों के साथ, एक खारिजी मिसाल आप लोगों को पेश करती हूँ कि इन दिरहम सही और गल्ला की मिसाल इसी तरह है। समझ आ गई हो कि एक पूरा रोटी है, क्या है, एक पूरा रोटी है। समझ आ गई हो, ये एक तरफ है और दूसरी रोटी एक बिल्कुल इसी साइज का एक और रोटी है, बिल्कुल इसी तरह रोटी है, इसी साइज का भी है, इसी कोई कमी बेशी नहीं है। समझ आ गए? वो दूसरी तरफ है, लेकिन उसी रोटी को मैंने 4 हिस्सों पर तकसीम किया है। क्या किया है? 4 हिस्सों पर और तकसीम किया है। तो हम ये कह सकते हैं ना
کہ ये सालिम रोटी जो है वो टुकड़े वाली रोटी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये भी उतनी ही वजन की है जितना वो टुकड़े वाली रोटी का है। अलबत्ता इतने फर्क है कि उसमें टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हैं, यहाँ पर ये पूरा सालिम रोटी है। समझ गए क्या है? सालिम रोटी है यह। तो जिस तरह 4 टुकड़े वाली रोटी जो है एक पूरी सालिम रोटी में वजन के बराबर हो सकती है, तो इस तरह एक सही दिरहम होता है, एक गलत दिरहम होता है। सही दिरहम वो होता है जो बिल्कुल सालिम दिरहम हो, समझ आ गए हो? और एक गलत दिरहम वो होता है जो कि टुकड़े टुकड़े हो, समझ आ गए? आप लोगों ने, मैंने तो अभी तक मैंने नहीं देखे हैं, पता नहीं आप लोगों ने आप लोगों ने भी नहीं देखे होंगे, हमारे आबा अजदाद ने देखे होंगे। जैसे हमारे पाकिस्तान में रुपया होते हैं ना, रुपया समझा के, ये पहले जमाने में 4 चवन्नी का होता है, समझा के? और 4 चवन्नी जो है वो 1 रुपए के बराबर होती थी। क्या होती थी? 1 रुपए के बराबर होती थी, समझ आए? तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये 4 चवन्नी जो है वो 1 रुपए के बराबर है, समझ आ गए? तो इसी तरह जो है होता है एक सही दिरहम होता था और एक जो है गलत दिरहम होता था। तो सही दिरहम वो होता था जो खुला हुआ नहीं था, जो टुकड़े टुकड़े नहीं था, और गलत दिरहम वो होता था जो कि क्या होता है, जो कि टुकड़े टुकड़े होता है। लेकिन सही दिरहम और गलत दिरहम का वजन बिल्कुल बराबर होता था, समझ आ गए? क्या होता है? बिल्कुल बराबर होता था। जिस तरह एक सही दिरहम के अंदर जो है वो क्या होता था, यानी जितना वजन चांदी का हो तो उतनी ही गलत दिरहम के बराबर होता है। सिर्फ इतना फर्क था कि वो पूरा सालिम था, एक को सालिम रोटी की तरह, और एक गलत दिरहम जो है वो टुकड़े टुकड़े होता था, जिस तरह 4 टुकड़े वाली रोटी होती थी। तो देखो अच्छा देखो, तो अब सवाल ये होता है कि अगर 2 सही दिरहम को क्या कर दिया जाए, समझ आ गई? यानी क्या है, 2 सही दिरहम और एक गलत दिरहम, 2 सही दिरहम और एक गलत दिरहम को बेच दिया जाए कहाँ पर? एक सही दिरहम के बदले में 2 किस चीज के बदले में? 2 गलत दिरहमों के बदले में, समझ आ गई? तो ये जायज हो जाएगा या जायज नहीं होगा? जैसे कि फौजी जो है वो क्या होता है, आसिफा को कहती है कि आप मुझे जो है, यानी मैं आपको 2 सही दिरहम दूंगी और साथ में जो है एक गलत दिरहम दूंगी, और आपने मुझे देने हैं एक सही दिरहम और 2 गलत दिरहम, समझ गए? तो ये बया जायज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जो है क्या करेंगे, 2 सही दिरहम को 2 गलत दिरहम के बराबर करार दे देंगे, क्योंकि सही वही है जो कि गलत है, गलत वही है जो है, क्योंकि वजन तो बराबर है ना। जब एक जिन्स भी हो गए, एक को वजन भी बराबर है, तो इसमें तो कोई रिबा नहीं है, बराबर सराबर हो गए, क्योंकि सही दिरहम का जो वजन होते हैं वही गलत दिरहम का है। तो इसी वजह से 2 सही दिरहमों का 2 गलत दिरहमों के बदले में बेचना जायज है, और इस तरह एक गलत दिरहम को हम एक सही दिरहम के बदले में बेच देंगे, क्योंकि जो सही दिरहम का वजन है वही गलत दिरहम का वजन भी होगा। देखो, वयजूज़ बैउ दिरहमैन सहीहैन व दिरहमिन गल्लतिन, जायज है 2 सही दिरहम और एक गलत दिरहम का बेचना, बिदिरहमिन सहीहिन व दिरहमैन गल्ला, किस चीज के बदले में? एक सही दिरहम और 2 गलत दिरहमों के बदले में बेचना, समझ आ गई? क्योंकि वो क्या था, सही दिरहम को हमने गलत दिरहमों के बराबर किया, और एक गलत दिरहम जो है वो सही के, क्योंकि सारे वजन में बराबर है, यहाँ पर बराबरी सराबरी हो गई, तो इस वजह से ये जायज होगा। आगे क्या फरमाते हैं आगे फरमाते हैं कि यानी अगर दराहिम, यानी ये तो आप लोगों को पता है कि जिस तरह क्या होता है, जेवर ये डली जो होते हैं वो खास होती है, समझ आ गया? खालिस जो है वो सोने का होता है, चांदी का होता है, लेकिन जब उसको जो है वो सांचे में डालते हैं, इससे दराहिम बनाते हैं, तो फिर उसमें थोड़ा बहुत जो है वो मिलावट हो जाती है। क्या हो जाती है? मिलावट हो जाती है। तो बस अगर दराहिम में जो है ज्यादा मिलावट हो, क्या हो,
ना ज्यादा चांदी हो थोड़ा सा मिलावट हो तो हम जो है उसको चांदी के हुक्म में करेंगे। तो समझ आ गया, क्या करेंगे, चांदी के हुक्म में करेंगे, समझ आ गया। यानी इस पर वही खालिस चांदी पर जो अहकाम लागू होंगे उस वही जो है वो इस मिलावट शुद्ध जो है चांदी पर अहकाम लागू होंगे। लेकिन अगर जो जिसमें जो है वो क्या होता है मिलावट ज्यादा हो, क्या हो, मिलावट हो, ज्यादा हो, समझ, थोड़ा सा एक रत्ती जो है वो चांदी हो और बाकी सारा मिलावट हो, समझ आ गया, तो फिर वो सामान के हुक्म में होगा, क्या होगा, सामान के हुक्म में होगा। देखा, व इन कान अल गालिब अला दराहिम अल फिज़्ज़तु, और अगर गालिब हो दराहिम पर चांदी, यानी दराहिम जो है वो चांदी तो खालिस होती है और दराहिम जो है इसमें थोड़ा बहुत मिलावट होता है ना, तो बस अगर दराहिम पर जो है वो चांदी गालिब हो यानी मिलावट कम हो जाए, वही फी हुक्मुल फिज़्ज़त, तो फिर वो चांदी को हुक्म होता है। वह इनकान गालिब अला दनानीर, और अगर दनानीर पर जो है यानी दनानीर पर सोने के सिक्कों पर जो है वो सोना जो है वो गालिब हो, वही फी हुक्म ज़हब, तो वो भी सोने के हुक्म में होगा यानी खालिस सोने के हुक्म में। फयुअतबरु फीहि मिन तहरीम तफाजुल मा युअतबरु मिन फीहि फिल जियाद, तो इन दराहिम और दनानीर में भी वही कमी बेशी हराम होगी जिस तरह एक उम्दा सोना और चांदी यानी खालिस सोना चांदी में कमी बेशी हराम होती है। वह इनकान गालिब अलैहिमा, और अगर गालिब हो इन पर कोट, क्या, गालिब हो अलैहिमा यानी सोने और चांदी पर जो है वो गालिब हो अलगिशो कोट, समझा कि मिलावट, फलैसा फी हुक्म दराहिम वदना नीर, समझ आ गया, तो यहाँ पर जेर लिखा है लेकिन ये दनानीर है, समझ आ गया, तो बस जो है ये दराहिम और दनानीर के हुक्म में नहीं होगा, फहुक्म फी हुक्म अल-उरूज, तो फिर ये किस चीज क्यों होगा, सामान के हुक्म में होगा, समझ आ गया। ले अक्सर हुक्म कुल, समझ आ कि ले अक्सर हुक्म कुल यानी कुल का एतबार करते हुए। अच्छा, अब जब यानी ऐसी तरह है जिनमें कोड गालिब हो, अगर इनको उनकी हमजिन्स दराहिम के बदले में कमी बेशी के साथ जाए तो ये जायज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जायज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक एक ऐसा दिरहम है जिसमें क्या हो, यानी दो जिसमें चांदी हो, यानी मिसाल के तौर पर इसमें 2 तोला चांदी आ सकती हो, बाकी सारा मिलावट है, समझ गए। एक दूसरी तरफ दराहिम है जिसमें जो है वो क्या है, जिसमें 3 यानी दूसरा एक ऐसा है जिसमें खालिस जो कि यानी खालिस चांदी हो, क्या हो, खालिस हो चांदी हो, समझ आ गए, इसमें भी 2 तोला सोना हो, समझ आ गए। तो बस तो चूंकि ये दराहिम जो है अब उस चांदी के बदले में बेचना जायज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जायज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है यानी ये यहाँ पर भी खालिस 2 तोला सोना है ना, वहां पर भी 2 तोला सोना है, तो सोने को सोने के बदले में खालिस को खालिस के बदले में बेच दिया, और जो बाकी बच गया वो मिलावट के बदले में हो जाए। या ये भी कह सकते हैं कि हो एक दरहम एक ऐसा है हो जो कि जिसके अंदर 2 तोले सोना हो और दूसरी तरफ 3 तोले सोना हो, समझ आ गए, तो ये जायज हो जाएगा, समझ आ गए, क्यों, क्योंकि खालिस 2 दराहिम के अंदर जो 2 तोले सोना हो, हम चांदी जो खालिस दूसरी तरफ 2 तोला 3 तोला सोना है उसको हम दो दो के बदले में बेचेंगे, और जो 1 तोला चांदी बचती है हम उसको यहाँ पर दराहिम के अंदर जो मिलावट है उसके बदले में बेचे जाएंगे, समझ आए कि क्या हो जाएंगे, बेचे जाए। देखो, इन बी जिनसिहा, फिर अगर इनको उन्हीं की जिन्स में बदले क्या बेचे, कमी मुतफाजिल यानी कमी और ज्यादती के साथ, जायज़ बया, तो ये बया जायज हो जाएगा, समझ आ कि क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर बराबरी हो रही है, एक दिरहम जो है उसमें कुछ मिलावट भी है, 2 तोला चांदी पे है, दूसरी तरफ जो है खालिस 3 तोला चांदी है, तो उन 3 तोले चांदी के बदले में यहाँ पर 2 तोले चांदी वाला दिरहम दिरहम क्या हो बेचना जायज है, क्योंकि यहाँ पर 2 तोला जो है वो खास 2 तोले के बदले में हो जाएगा, और जो दूसरी तरफ खालिस चांदी में जो 1 तोला चांदी बचती है वो हम मिलावट के बदले में बेचेंगे, और मिलावट चूंकि चांदी की जिन्स ही नहीं तो इस वजह से कमी बेची जायज है, और जो यहाँ पर दरहम के अंदर 2 तोले है वो तो हमने बराबर सराबर करा बेचा गया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई हुई होगी, अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछे, और नहीं इसी पर इक्तिफा करते हैं, टाइम भी पूरा है।